Hello, friends. Hope everybody is ready. Today's topic is a combined limit on MTF. We have our COO and Head of Operations, Mr. Hemant Agarwal, with us. He will be briefing you what is the new setup or the process we have set up. So I would appreciate everybody to listen very carefully and also write down your own questions. And when Mr. Hemant finishes his presentation, we will have a question answer sessions only after that. So I request you, everybody, please listen to this very carefully. And please, the floor will be open for you after the presentation is open for all kind of questions. Okay, happily, we will, Mr. Hemant will be answering all those. So, Mr. Hemant, the floor is for you. Hemantji, you can share your screen now. Yes, yes. Good afternoon, everyone. And happy Navratri to everyone. So, after a long wait, there have been a lot of requests for enabling a common limit, which has been due for a long period of time. So finally, we are in a day where we can go live. We are at a stage where we are going live on common limit. So I'll just share the presentation. Hold on. I'm not sure. Okay. You can see the screen. Kujit, can you confirm? Okay, thank you. Yes. So we'll keep it simple. It will be 10-15 minutes presentation or the information what I'm trying to keep it across. Now, what is combined limits? Currently, what is being offered to the customer is that at product level, when I say product level, if he want to do a normal trade, he need to give margin separately in normal. And if you want to trade for under MTF, then he need to give margin separately in MTF. So when I say margin or a collateral, it goes in terms of cash and non-cash. Non-cash is being by the mode of pledging of securities. So whenever you pledge a securities for a customer, so the customer selects product MTF when he want to trade in MTF. Okay, so currently there is a procedure, and in terms of limit, in terms of cash, so what he does, he requests to transfer this money to the cash margin account, and from that, when the funds are transferred to the cash margin account, you get the benefit, and he's able to trade in MTF product. Now, sometimes the limitations what we are facing across, or a customer what has a limitation is that if the limit is available in MTF, but he want to do a normal trade, that point of time he cannot do because the margins are separately allocated for the products. Now, to overcome this, we are come up with the combined limit where the total limit to the customer, like he has to give a normal, he has transferred funds to the normal ledger, and whatever pledge he is doing, he has to do only as a margin pledge. He need not select any MTF. There will not be any option of selecting MTF. So it will go as normal limit, normal margin pledge. He has to initiate the margin pledge. So once that is set, we in the morning RMS, in the RMS limit window, you will get the combined limit whatever across the products. Now, uh, what are the benefits of this? Now, when we are giving a combined limit, if he is having an existing position, so I'll give an example of two cases. There is a new customer who is trying to do a transaction, and there is an existing customer who is having an MTF positions. Now, for a new customer, he has given, say, for example, transferred 1 lakh rupee, and he want to take a position in MTF. So in MTF, the margin requirement would be, say, he want to take a position, say, worth rupees 1 lakh rupees in MTF, and the margin requirement for MTF that 1 lakh rupees is, say, 40,000 rupees. So when he places an order selecting MTF as a product, 40,000
margin will be blocked against the 1 lakh shares or 1 lakh of exposure what he is trying to take. Okay, and the rest 60,000 is made available. That 60,000 he can either use in MTF or normal again for his subsequent transaction. he did a second transaction जहां पर उसने नॉर्मल के अंदर सेम 1 लाख रुपए का पोजीशन लिया, जहां पर उसका मार्जिन लगा वो बास्केट के हिसाब से 25,000 रुपए या 30,000 रुपए उसका मार्जिन लगा। तो 30,000 रुपए नॉर्मल में गया ट्रांजेक्शन का, 1 लाख रुपए का 30,000 का मार्जिन उसका नॉर्मल में यूज हुआ, 40,000 का मार्जिन उसका हुआ MTF के अंदर। तो टोटल मार्जिन कंबाइंड 70,000 उसको दिखेगा कि 70,000 इज मार्जिन यूज। इसमें एक कैच है, अगर सेम स्क्रिप्ट वो MTF भी की करता है और नॉर्मल में भी करता है, सिंस द बास्केटिंग सिस्टम इज डिफरेंट, द मार्जिनिंग सिस्टम इज डिफरेंट, उसका मार्जिन अलग अलग यूज होगा। MTF के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो मल्टीप्लायर बेसिस में ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर ज़्यादा मार्जिन यूज होगा, अकॉर्डिंगली आपका वो मार्जिन यूटिलाइजेशन दिखाएगा। और बाकी का जो बैलेंस फिगर है वो यूज कर सकता है सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन। उसने पहले दिन में ये ट्रांजेक्शन किया जहां पर 30,000 1 लाख रुपए का माल खरीदा नॉर्मल के MTF में और 1 लाख का माल खरीदा नॉर्मल में। तो टोटल मार्जिन उसका जो यूटिलाइज हुआ इस दोनों ट्रांजेक्शन के बीच में इस 70,000 रुपीज। तो उसका अगर हम T+1 पे जाके लेजर, जब लेजर में बिल पोस्ट होगा तो आपको लेजर ऐसा दिखेगा, 30,000 रुपए, सॉरी 40,000 नॉर्मल से MTF कैश लेजर में मूव हो जाएगा अगेंस्ट द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ MTF, और 1 लाख रुपए का MTF फंडेड के अंदर लेजर डेबिट दिखेगा। और नॉर्मल के अंदर उसको 1 लाख का जो परचेस किया है, नॉर्मल परचेस किया, वो 1 लाख रुपए का डेबिट आएगा, उसके सामने उसके पास रहेगा 60,000 रुपीज, तो उसका लेजर डेबिट बनेगा 40,000 रुपीज। दिस इज द नॉर्मल वे इट हैपन्स। तो सेकेंड डे क्या होगा, सेकेंड डे उसके पास 40,000 का जो कैश लेजर है, जो आज भी आप लोग यूज करते हो, जो कैश ऐसे मार्जिन लगा रखा है फॉर MTF के लिए, वो उसको मेड अवेलेबल रहेगा। लेकिन कैश सेगमेंट के लिए उसके पास ट्रेड करने के लिए लिमिट नहीं रहेगा, बिकॉज उसका जो डेबिट है, कितना डेबिट खड़ा हो गया, 40,000 का जो डेबिट है, वो डेबिट के सामने पुष्पा का जो बेनिफिट मिलता है उसको, वो उसके कारण से नॉक ऑफ हो जाएगा। बाकी उसको वो एडिशनल कोलेटरल है नहीं, इस कारण से उसको लिमिट नहीं मिलेगा। हाउएवर उसने जो कैश दे रखा है 40,000 का जो कैश MTF के लिए यूज हुआ है, वो वाला पोर्शन जब भी वो MTF पोजिशन स्क्वायर अप करेगा वो उसको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेयर ही कैन डू, जो एग्जिस्टिंग इफेक्ट है आपको वो कोई चेंज नहीं मिलेगा। द ओनली थिंग इज दैट आपको वहां प्रोडक्ट सेलेक्ट करके ट्रांजेक्शन करना है। इसमें बेनिफिट आपको मैं आगे बताता हूँ। दूसरा, आपको अभी अगर MTF में जो कोलेटरल दिया है, फिलहाल आज क्या करते हो आप, MTF करके बेचते हो, उसके जगह आपको CNC करके ही बेचना है। जो पुराना आप ओडिन में करते थे ना, सेम प्रोसीजर से आएगा अभी। तो आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा, मतलब MTF टिक करके कोलेटरल सेल करने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ CNC करके बेच सकते हो। आई थिंक मैंने MTF कैश क्रेडिट के बारे में बता दिया। अभी ये MTF कैश क्रेडिट इज मेड अवेलेबल फॉर नॉर्मल ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। सो ये क्या है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया, 40,000 रुपये का जो मार्जिन है जो MTF में यूज किया है, उसने अगर वो MTF का पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया तो 40,000 का मार्जिन अवेलेबल रहेगा, वो आपको नॉर्मल ट्रेड के लिए अवेलेबल रहेगा। और नेक्स्ट डे, अब जैसे आज आपने ट्रेड किया, नेक्स्ट डे उसके पास मार्जिन रिक्वायरमेंट आया, तो मैं आपको दिखा दूं। जो उसका कोलेटरल एलोकेशन होगा, जो भी टोटल कोलेटरल एलोकेशन होगा, उस एलोकेशन में पहला जो भी रिक्वायरमेंट है MTF के लिए एलोकेट होगा, सब्सिक्वेंट जो बचेगा रेसिडुअल वो नॉर्मल के लिए एलोकेट होगा। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम MTF विल बी फुल्ली कवर्ड। उसका M2M शॉर्टफॉल का रिक्वायरमेंट हो गया, या फिर उसका जो इनिशियल मार्जिन, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर MTF हो गया, वो दोनों एंड ऑफ द डे में फर्स्ट MTF में एलोकेट करेगा। जो टोटल कोलेटरल अवेलेबल है उसके अगेंस्ट में वो फर्स्ट MTF में एलोकेट करेगा, उसके बाद जो रेसिडुअल रहेगा वो दूसरा नॉर्मल के लिए एलोकेट होगा। ठीक है, आई थिंक आई हैव कवर्ड द सेकंड पॉइंट ऑल्सो। एंड ऑफ द डे शॉर्टफॉल विल बी कैलकुलेटेड एट ओवरऑल लेवल। इससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो आज की डेट में कस्टमर के साथ होता है कि MTF में शॉर्टफॉल है और वो नॉर्मल में ट्रेड कर पा रहा है, वो बेनिफिट चला जाएगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम शॉर्टफॉल को यहाँ से रिकवर कर लेते हैं, और रेसिडुअल जो बचा तो अवेलेबल कोलेटरल रहा तो ही ट्रेड कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक्सपोजर लिमिट हमने सेट किया है कैप्ड आज तक, अभी तक का 2 करोड़ तक का।
जो केस टू केस बेसिस पे अगर कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो बढ़ा सकते हैं। एट क्लाइंट लेवल देर आर नो मच चेंजेस। एक चेंज ये होगा कि उसको मार्जिन प्लेज एमटीएफ के लिए अलग से नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मल जो मार्जिन प्लेज है जो हमने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, कंबाइंड मार्जिन सॉरी मार्जिन प्लेज रिप्लेज थ्रू कंबाला, जहाँ पर आप रियल टाइम जो भी मार्जिन प्लेज करोगे उसके बेसिस पे आपको लिमिट मिलेगा विद इन 5 to 7 मिनट्स के अंदर। वो वाला प्रोसीजर से आप प्लेज कर सकते हो और अकॉर्डिंगली लिमिट यूज कर सकते हो। वो लिमिट आप बोथ एमटीएफ और नॉर्मल के लिए यूज कर सकते हो। जो मार्जिन रिपोर्टिंग होता है वो इंटरनल प्रोसीजर है, अगेन वो एंड ऑफ द डे एज पर द एमटीएफ और नॉन एमटीएफ रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बाइफरकेट होता है एंड अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट होता है एक्सचेंज को। सो इससे बेनिफिट क्या हुआ कस्टमर को? कस्टमर को प्लेज आसान हो गया, फंड ट्रांसफर एक ही सिंपल हो गया, मल्टीपल टाइम्स उसको बोलना नहीं पड़ेगा सर आप एमटीएफ में फंड ट्रांसफर करो आपको, या ब्रांच को बोलना पड़ेगा कि आप है ना एमटीएफ से फंड ट्रांसफर करो, एमटीएफ में फंड ट्रांसफर करो उसके बाद में आरएमएस को कंफर्म करो लिमिट के लिए। ऐसा नहीं, वो ऑटोमेटिक आपको लिमिट मिलेगा उसमें। एक सिंगल व्यू दिखेगा आपको, ओवरऑल एक्सपोजर सब मिलेगा। आपको आसान फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा जहां पर आप नॉर्मल में ट्रेड कर सकते हो, एमटीएफ में ट्रेड कर सकते हो, इंक्लूडिंग आप डेरिवेटिव में भी ट्रेड कर सकते हो। अवेलेबल मार्जिन रहा तो आप एमटी डेरिवेटिव में भी ट्रेड कर सकते हो। और उसका जो कोलेटरल है वो ऑप्टिमल यूज हो रहा है अक्रॉस द प्रोडक्ट्स। जो जिसको लीवरेज करना है ऑटोमेटिकली सभी प्रोडक्ट्स में वो लीवरेज कर सकता है। ठीक है। So this is the changes what we are going to do it. Again, this is going to be effective from tomorrow, 24th of September. Whatever requirements or changes are there in the front end we have done, आपको मिलेगा। आपको एक नोट जाएगा जहाँ पर एमटीएफ का कितना मार्जिन है और नॉर्मल का कितना मार्जिन है। वो करंटली कंबाला हमको दे रहा है एक वर्जन अपडेट में, लेकिन उन्होंने उसके लिए एक फॉर्मूला बना रखा है जहाँ पर एक कस्टम कॉलम आप ऐड कर सकते हो। उस कस्टम कॉलम के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो और एक फॉर्मूला देंगे हम लोग आपको, कैसा अपडेट करना है वो भी शेयर करेंगे। उसके बेसिस पे आप जब शेयर अपडेट करोगे, रिकॉर्ड कर लोगे आपके सिस्टम के अंदर, सेव कर लोगे उस फॉर्मूला को, तो आप देख सकते हो बाइफरकेशन ऑफ एमटीएफ का मार्जिन यूटिलाइजेशन एंड नॉर्मल का मार्जिन यूटिलाइजेशन। जो कैश सेगमेंट में जो मार्जिन यूटिलाइजेशन होता है ना वो आपको दिख जाएगा। Now this is from my end on MTF. That is the combined limit. Any questions? You can definitely ask. I'm here to address all those questions. Kuljit, you can take any questions if they're all there. सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि हेमंत जी ने कितनी अच्छी तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से हमें बताया कि किस तरह से हमने नया सेटअप किया है, कि एक कॉमन मार्जिन दी जाएगी और अकॉर्डिंगली आपको अगर ट्रेड सीएनसी में करना है या एमटीएफ में करना है, ये आपका चॉइस होगा। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि एमटीएफ में जो भी सौदा आप डालेंगे उसमें आपकी मार्जिन नॉर्मल मार्जिन से ज़्यादा लगेगी। उन्होंने उस चीज़ के बारे में समझाया। सो गाइस, फ्लोर इज ओपन। आपको किसी को कोई सवाल पूछना है, प्लीज हैंड रेज योर हैंड, तो आई विल ओपन अप दैट पर्सन टू आई विल अलाउ दैट पर्सन टू टॉक। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड प्लीज। वहाँ एक हाथ का बटन है, वहां पे आप करिए। 1 मिनट। प्रवीण कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, आप प्लीज सवाल पूछें। Hi, good afternoon. There are two questions. One, कि जो भी मार्जिन अगर एक्स्ट्रा है अपना इसके अंदर, दैट शीट इज गोइंग टू कम एमटीएफ का और ये नॉर्मल का, दोनों का अलग अलग बताया जाएगा हम लोगों को, क्योंकि कहीं पे भी हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे। नहीं, अभी आपको जो कंबाइंड लिमिट है, इसलिए मैंने बताया, लास्ट में मैंने बताया कंबाला में हम आपको एक स्क्रीन एक कॉलम ऐड करके करवा रहे हैं जहां पर हम इस चीज का ब्रेकअप देंगे कि एमटीएफ का कितना मार्जिन है और नॉर्मल का कितना मार्जिन है। एक कॉलम ऐड करवा रहे हैं हम अभी। ओके, इन केस उसके अलावा क्लाइंट को जो रिपोर्ट जाता है, क्लाइंट को रिपोर्ट जाएगा उसमें तो मिलेगा ही उसको कि मेरा एमटीएफ का कितना एक्सपोजर है और कितना पोजीशन उसका है अगेंस्ट में, कौन सा उसने कितना कोलेटरल उसमें यूज हो चुका है, वो रहेगा। द सेकंड क्वेश्चन इज, इन इन टी प्लस में है नॉर्मल में T+? 7, टी प्लस 5, हाँ सॉरी हाँ, टी प्लस 5 में है, तो वो वहां पे तो ब्लॉक रहेगा। करेक्ट।
ठीक है, एंड द मार्जिन आर नॉट बीइंग यूज्ड टू द लिमिट ऑफ व्हाट कैन बी यूज्ड इन नॉर्मल, तो एमटीएफ में उसका ट्रेड जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, प्रोडक्ट लेवल पे कंसोल है उसका। नहीं, अभी तो हमारा लेवल अलग है, जाएगा, विल एनेबल। जाएगा ना सर, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी ना कहीं पे भी? हाँ हाँ, नहीं आएगा, ये नो। थैंक यू। सुनील जायसवाल जी, प्लीज सवाल पूछिए। सर गुड इवनिंग। सर मेरा दो क्वेश्चन है कि जैसे सर ने बताया कि अगर सेम स्क्रिप्ट कोई क्लाइंट सीएनसी में भी बाई करता है और एमटीएफ में भी करता है, तो क्या वो एक उसको कन्वर्ट कर सकता है जो सीएनसी में किया है एमटीएफ में, एमटीएफ में किया वो सीएनसी में, अगर मार्जिन अवेलेबल है तो? क्योंकि अभी करंटली तो हम नहीं कर सकते। मैं फिलहाल तो मैं अभी नहीं दूंगा, बट आई थिंक इन नेक्स्ट एक आध वर्जन के अंदर हम वो भी रिलीज करेंगे जहां पर आप प्रोडक्ट भी कन्वर्ट कर सकें। अच्छा, सेकेंडरी सर की जो अभी हमारे पास सी लेजर, एमटीएफ लेजर और बाकी प्लेज वगैरह है, वो कल से ऑटोमेटिकली हो जाएंगे? हमें कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं, आपका सी लेजर का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। सी लेजर में क्या होगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जितना मार्जिन रिक्वायरमेंट है उतना ही हम सी लेजर में रखेंगे, बाकी का हम नॉर्मल में पेन के लिए यूज कर लेंगे उसको। दूसरा, आपका जो क्या बोलते हैं, एमटीएफ का जो प्लेज किया हुआ कोलेटरल है, वो पूरा का पूरा कल मर्ज हो जाएगा नॉर्मल के अंदर। ओनली द रिक्वायर्ड कोलेटरल विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग, वो वाला कोलेटरल आपको एमटीएफ मार्क होगा। पर आप एट क्लाइंट, आपको पीएल क्लाइंट के अंदर वो बाइफर्केशन मिलेगा कि ये वाला स्टॉक एमटीएफ कोलेटरल के लिए, ये वाला स्टॉक एमटीएफ फंडेड है और ये वाला स्टॉक नॉर्मल के अंदर है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक जो आपका रहेगा एज ए पार्ट ऑफ मार्जिन प्लेज रहेगा अंडर नॉर्मल। एमटीएफ का जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उस रिक्वायरमेंट के हद तक का ही स्टॉक आपका एमटीएफ कोलेटरल बोल के प्लेज दिखेगा। पर आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ऐसा बाइफिकेशन नहीं दिखेगा, जहां पर एमटीएफ कोलेटरल कितना है और नॉर्मल कोलेटरल कितना है वो ब्रेकअप मिला, जो आज आपको करेंटली दिख रहा है। ओके सर, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है, इफ क्लाइंट सेल्स द शेयर फ्रॉम एमटीएफ सेलेक्टिंग सीएनसी, whether limit would be made available on the same day in MTF. The client selling shares in MTF, अगर वो MTF से सेल कर रहा है तो CNC प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर सकता है, बिकॉज वो प्रोडक्ट का नाम ही MTF है। इसका थोड़ा और क्लैरिफिकेशन देता हूँ, कंफ्यूजन होगा शायद। पॉइंट ये है कि पहले क्या होता था, MTF का जो कोलेटरल था, जो आपने कोलेटरल के रूप में रखा हुआ है, वो MTF प्रोडक्ट में ही सेल कर पाते थे। अभी क्या होगा, वो आप सीएनसी करके नॉर्मल में ही बेच पाओगे। एक चीज और क्लैरिफिकेशन देता हूं, जो भी स्टॉक प्लेज किया हुआ है उसके अगेंस्ट में ईपीआई का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज उसका प्लेज का बेनिफिट आपको ऑलरेडी मिल रहा है। तो ईपीआई जब होगा ना उसका बेनिफिट, और वो ईपीआई होता नहीं है बिकॉज ड्यूरिंग द डे में वो स्टॉक ऑलरेडी एक्सचेंज के प्लेज्ड है। हम उसको मार्केट क्लोज होने के बाद एक्सचेंज से विड्रॉ करके हम फिर अर्ली पे इन करते हैं। तो ड्यूरिंग द डे ओनली फ्री पीओए स्टॉक जो होल्डिंग है, अगर उसमें से सेलिंग होता है तो ही आपको ईपीआई का बेनिफिट मिलेगा, प्लेज का नहीं मिलेगा। इफ द एक्सचेंज चेंज एक्सपोजर मार्जिन रूल्स, देन हाउ विल द सॉफ्टवेयर अकोमोडेट? ये डेली बेसिस पे हमारे पास आपका हेयर कट फाइल जो होता है, एक्सचेंज का जो मार्जिनिंग फाइल होता है, वो डेली अपडेट होता है। इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई चेंजेस होता है एक्सचेंज के अंदर, वो इम्पैक्ट सेम डे में आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में भी दिखेगा। Sir, can we get benefit if MTF position is sold next day? Not clear on this. Can we get benefit? If MTF open position is sold next day. Yes, you will get the benefit ना, आपका एमटीएफ में उतना मार्जिन रिलीज हो जाएगा, तो उसका आपको एक्सपोजर वो जो उसके अगेंस्ट में जो कोलेटरल ब्लॉक हो रहा था उसका बेनिफिट मिल जाएगा आपको। और कोई आंसर? एनी फर्दर क्वेश्चंस? किसी के और कोई सवाल पूछ लीजिए। क्या बात है, सबको बढ़िया से समझ में आ गया, तो कल से बिजनेस शुरू हो जाएगा। हेमंत जी, प्लीज जरा आरएमएस टीम को बता दीजिए, लिमिट अभी आज भरपूर आने वाली है। कोई सवाल नहीं है, एकदम प्रोडक्ट बढ़िया है।
So, friends, I think from tomorrow we will expect at least 10 to 15% jump in the volumes, at least for MTF. है ना? तो हेमंत जी, आई थिंक सेशन क्लोज करते हैं. एक मिनट, रजनीकांत का एक क्वेश्चन आ रहा है, एक जस्ट होल्ड ऑन. हेलो या हेमंत रजनीकांत, भाई। प्लीज. हाँ बोलिए. हेमंत भाई अभी जो एमटीएफ का जो डेबिट है, एमटीएफ में पोजीशन देता हूँ, तो डेबिट किधर दिखेगा मेरे को? अभी का जैसा एमटीएफ लेजर में ही दिखेगा या और किधर भी देखना है? नहीं, MTF के लेजर में ही दिखेगा. एमटीएफ का लेजर में दिखेगा। अभी और जेवीस का प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? जेवीस का प्रॉब्लम नहीं, जेवी का प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम नहीं है वो जेवी का. हमारे पास उन्होंने भी उस चीज के लिए वर्जन अपडेट दिया है, तो वी आर टेस्टिंग इट अक्रॉस. आई थिंक एक हफ्ते के अंदर वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो ऑटो ब्रेकअप के साथ आपको मिलेगा कि क्या जेवी पोस्ट हो रहा है. अभी फिलहाल क्या है ना, सॉफ्टवेयर का ये लिमिटेशन है, जिस कारण से हमने ऑलरेडी उसको रेस किया है. उन्होंने करेक्टिव चेंजेस हमको दिया है, हम टेस्ट कर रहे हैं उसको. टेस्ट कंफर्म होने के बाद अपडेट कर देंगे ये. ओके, तो उसका मतलब यह है अभी अभी जो एमटीएफ में जो बिल पोस्ट होता है, एमटीएफ में बाई करेगा, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ द चार्जेस पोस्ट होता है, यस करेक्ट है? यस यस यस. ओके ओके। Hemant, can you just speak in a different English also so that other people can also understand? Hindi में भी you have replied. So question was very valuable question. I think everybody should understand this. एक बार repeat कर दीजिए ना जवाब. So what Rajnikant asked was that in terms of what would be the impact in seeing the ledgers for MTF and non-MTF funded ledgers. So currently, whatever way you are seeing or the client is able to see, that will still continue. There is no change in respect of seeing the funded ledger. It will continue the same. However, he also asked me the question in terms of whatever the JV we are posting against the profit and loss and the charges, how it's going to get impacted. Again, I'm saying there will not be any impact on it. It will continue to be posted. However, the vendor has given us some update on it, where how they are computing the reversals of reversal including the charges now for that particular transaction they have given us. So we are testing it across. Once successfully implemented, we will communicate it across. So nice. So simple. So nice, sir. Very nicely explained. So ठीक है sir. I think no further questions. We can end the session today. Thank you Okay. guys. Thank you everybody. कल से वॉल्यूम दबा के बढ़ेगा सर.